Welcome, dear students. We are back with the bacterial biofertilizers. We have already discussed some basic and introductory part about the bacterial biofertilizers. The examples of different microorganisms involved in the production of biofertilizers like bacteria, fungi, algae, earthworms, etc. In previous lecture, we have also discussed about the bacterial biofertilizers, in that symbiotic nitrogen fixer or symbiotic relationship, symbiotic association and free living bacteria. In that example, we have shown about the rhizobium. Second example, we have discussed about the azospirillum. Now, the third example is Azotobacter. In this lecture, we will discuss about the bacteria Azotobacter and the large scale production of bacterial biofertilizer. So let's start with the bacteria Azotobacter. Azotobacter, it is a heterotropic free living nitrogen fixing bacteria. तो ये कौन सा बैक्टीरिया है? फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, या फिर आप उसे कहेंगे नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक, ये दोनों टर्म्स हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है. मैं आपको फिर से बता दूं, सिम्बायोटिक में दोनों पार्टनर्स बेनिफिट होते हैं, और नॉन सिम्बायोटिक, जिसे फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं, यहाँ पर देर इज़ नो एनी एसोसिएशन. सो एज़ोटोबैक्टर ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है. इट इज़ प्रेजेंट इन अल्कलाइन एंड न्यूट्रल सॉइल्स. Secondly, Azotobacter, it is most commonly occurring species in the arable soils of India. Now, what is arable soils? This is the soil or the land which is capable of being ploughed and used to grow crops. That is known as the arable soil. तो ये Azotobacter ये कहाँ find होते हैं? It is mostly commonly occurring species in the arable soils of India. Apart from its ability to fix the atmospheric nitrogen, it can also synthesize the growth promoting hormones or growth promoting substance like gibberellins, auxins, cytokines and also to some extent vitamins. तो ये जो auxins, gibberellins, cytokines और ये सब प्लांट हार्मोन से, प्लांट सब्सटेंस है विच हेल्प्स टू ग्रो द प्लांट इन हेल्दी कंडीशन. तो ये जो बैक्टीरिया है एज़ोटोबैक्टर, ये सिर्फ नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता है. अपार्ट फ्रॉम नाइट्रोजन फिक्सिंग, इट ऑल्सो सिंथेसाइज दिस ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस एंड इट हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो इन अ हेल्दी वे. Many strains of Azotobacter exhibit fungicidal properties against some species of fungus. Fungicidal means they have the ability to kill the fungi. That is the fungicidal. Fungi, cidal means to kill. So this Azotobacter has the ability to kill the fungi. Response of Azotobacter has been seen in examples like rice, maize, cotton, sugarcane, pearl millet, that is bajra, vegetable and some plantation crops. It also improves the germination of seed and growth of the plant. Azotobacter is heaviest breathing organisms and requires large amount of organic carbon for its growth. तो इसके ग्रोथ के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन इसे रिक्वायर्ड होता है, और डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स भी बहुत ही बढ़िया है. नाइट्रोजन फिक्स करता है, देन इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस प्लांट
plant stimulating substances, प्लस इट शोज फंजीसाइडल इफेक्ट, और इसका रिस्पॉन्स भी देखा गया है इन द प्लांट्स लाइक राइस, मेज, कॉटन एक्सेट्रा. इट ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव द सीड जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट. नाउ इट्स टाइम टू सी द प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर्स. हम डायरेक्टली फ्लो चार्ट की तरफ आते हैं. सो दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर द production of biofertilizers. Firstly, we have to prepare the appropriate or selective media for bacterial inoculant. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, we have to prepare the media. अभी हमें inoculant ऐड करना है, तो inoculant ऐड हम किस में करेंगे? For that we require nutritional media, selective media. Okay, so rhizobium, अगर हमें rhizobium biofertilizer चाहिए, then we will use the yeast extract media or trypton yeast extract media. Okay, so which will enhance the growth of just rhizobium bacteria. So prepare the appropriate or selective media for bacterial inoculant. This will be your first step, preparation of media. Second, inoculate with specific bacterial strain aseptically. Inoculate करना है उस broth में specific bacteria. Third step will be incubate that broth or incubate the flask containing broth and inoculum at 30 to 32 degrees Celsius for 5 to 7 days in rotary shaker. Rotary shaker, why? To provide agitation for proper mixing. So this will be your third step, incubation. After incubation of 5 to 7 days, you will observe for the growth of culture. टर्बिडिटी आपको दिखेगी, मैट डार्क टर्बिडिटी दिखेगी. दैट इंडिकेट्स दैट आवर बैक्टीरिया हैज़ बीन ग्रोन, आवर बैक्टीरिया हैज़ बीन मल्टीप्लाइड, एंड दैट कल्चर इन द ब्रॉथ इज नोन एज द स्टार्टर कल्चर. आप उसे क्या कहेंगे? स्टार्टर कल्चर. तो अंडर ऑप्टिमम कंडीशन दिस पॉपुलेशन लेवल कुड बी different for different bacteria, like 4 to 5 days for rhizobium, 5 to 7 days for azospirillum and 6 to 7 days for azotobacter. ठीक है, तो इतने डेज लग सकते हैं फॉर द ग्रोथ. यहाँ पर 5 to 7 days है, मीन्स 5 to 7 days for azospirillum, and that the culture obtained in the flask, it is called as the starter culture. फिर आप ये स्टार्टर कल्चर लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं एज अ इनोक्यूलम. इनोक्यूलम मतलब जो आप ऐड करते हैं. ओके, जो इनोक्यूलेंट आप ऐड करते हैं, इट इज़ नोन एज इनोक्यूलम. सो फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ट्रांसफर दिस स्टार्टर कल्चर और ट्रांसफर द इनोक्यूलम फ्रॉम स्टार्टर कल्चर इनटू फर्मेंटर और लार्ज फ्लास्क and allow it to grow until required level of cell count is been reached. कि sterilize and cool well. तो जो आपने इनोक्यूलम फर्मेंटर में, वो इनोक्यूलम आपने ऐड किया है, उस फर्मेंटर में आपका मीडिया होगा. सो मीडिया इन अ फर्मेंटर इज इनोक्यूलेटेड विथ लॉग फेज ऑफ कल्चर ग्रोन इन द लार्ज फ्लास्क. सो जो मीडिया है फर्मेंटर में, इट इज़ इनोक्यूलेटेड विद द लॉग फेज, नॉट लैग बट लॉग एक्सपोनेंशियल फेज, ताकि वो रैपिडली ग्रो हो सके. तो जब बैक्टीरिया ये लॉग फेज में हो गए, तभी वो फर्मेंटर में ऐड किए जाते हैं, फर्मेंटर में इनोक्यूलेट किए जाते हैं. सो आफ्टर एडिशन ऑफ द फर्मेंटर, cells are grown in fermenter by providing oxygen, by providing aeration and continuous stirring. Broth ये चेक किया जाता है for the population of inoculated organisms. Cells, after complete process of this production, cells harvest किए जाते हैं
when with the population load of 10⁻⁹ cells per mm। तो इतने अमाउंट में जब पॉपुलेशन माइक्रोब्स के पॉपुलेशन हो जाती है देन वी हार्वेस्ट दैट सेल्स। यहाँ पर हमने वी हैव टू डू द मास प्रोडक्शन, वी हैव टू डू द लार्ज प्रोडक्शन। सो हम यहाँ पर इनोकुलम ये लार्ज अमाउंट में कैसे प्रिपेयर करेंगे दैट वी हैव सॉन। नेक्स्ट एडिशनल रिक्वायरमेंट होता है कैरियर। कैरियर इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। Carriers for bacterial inoculants. Now what are carriers? Carrier, it is a medium in which organisms are allowed to multiply। जहाँ पर हमारे organism of interest ये multiply होते हैं उसे हम बोलते हैं carrier। different carriers के examples हैं, diagrammatically भी दिखाए हैं, like press mud, lignite, charcoal, coconut shell, husk is there, rice husk, जो सूखा हुआ राइस होता है दैट इज राइस हस्क, सेलुलोज पाउडर इज देयर, ग्रीन लीफ एंड पीट इज देयर, PEAT पीट। पीट क्या होता है? इट इज द सॉफ्ट ब्लैकिश और ब्राउनिश नेचुरल सब्सटेंस फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड प्लांट दैट इज नोन एज पीट। तो इनमें से हम किसी का भी इस्तेमाल करके we can use it as a carrier in which our organisms are multiplied। तो ideal carrier कैसा होना चाहिए? It must be cheaper in cost, easily available होना चाहिए, it must reach in organic matter, no toxic chemical must be present, it must have water holding capacity of more than 50% and it must be easy to process। तो ये है ideal कैरियर के कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ इनोकुलेंट पैकेट्स। नाउ हाउ यू विल प्रिपेयर द इनोकुलेंट पैकेट्स, मतलब जो आपका इनोकुलेंट तैयार है यू विल प्रिपेयर और यू विल स्टोर इन द पैकेट। सो हाउ इट इज डन? फर्स्टली यू हैव टू टेक द स्टरलाइज्ड कैरियर मटेरियल। सो स्टरलाइज्ड कैरियर मटेरियल इज स्प्रेड। जो हमने एग्जाम्पल्स देखे चारकोल, पीट, एनी, उसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। स्टरलाइज्ड कैरियर मटेरियल इज स्प्रेड इन क्लीन ड्राई स्टराइल प्लास्टिक। कोई भी प्लास्टिक पॉलीथीन में आप इसे स्प्रेड करें कैरियर मटेरियल। सेकेंडली बैक्टीरियल कल्चर फ्रॉम फर्मेंटर। जो बैक्टीरियल कल्चर आपने प्रिपेयर किया था ओके प्रीवियस स्लाइड में हमने जो स्टडी किया, you have to take that bacterial culture from fermenter and it is added to the carrier aseptically and it is mixed manually or mechanically। Next step, inoculants are packed in polythene bags and are sealed with electric sealer। Now what are specification of the polythene bags? वो polythene bags जो मार्केट में सेल होती है तो उसमें क्या स्पेसिफिकेशन इंक्लूडेड होते हैं, क्या क्राइटेरिया इंक्लूडेड होते हैं? सो पॉलीथीन बैग्स शुड बी ऑफ लो डेंसिटी ग्रेड, थिकनेस ऑफ द बैग शुड बी 50 to 75 माइक्रॉन्स। तो इतनी थिकनेस होनी चाहिए 50 to 75 माइक्रॉन। और पैकेट शुड बी मार्क्ड विद द फॉलोइंग क्राइटेरियाज लाइक नेम ऑफ द मैन्युफैक्चर, ओके मैन्युफैक्चर का नाम, प्रोडक्ट का नाम, स्ट्रेन नंबर, द क्रॉप्स टू विच रिकमेंडेड। आपने जो बायो फर्टिलाइजर तैयार किया है वो कौन कौन से क्रॉप के लिए सुटेबल है वो मेंशन होना चाहिए। आपने कौन सी मेथड यूज़ की है ऑफ इनोकुलेशन दैट मस्ट बी इंक्लूडेड। डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, प्राइस ऑफ दैट बायो फर्टिलाइजर, फुल एड्रेस एंड स्टोरेज इंस्ट्रक्शन। वो बायो फर्टिलाइजर्स जब आप परचेस करते हो तो उसने वो फर्टिलाइजर कौन से कंडीशन में स्टोर करना चाहिए दैट मस्ट बी इंक्लूडेड अंडर दिस स्टोरेज इंस्ट्रक्शन। सो दिस आर स्पेसिफिकेशन। अब यहाँ पर दिखाया गया है फ्लो शीट डायग्राम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर। लेट्स सी। सबसे पहली स्टेप है मदर कल्चर। ओके मदर कल्चर मीन्स प्योर कल्चर। ठीक है प्योर कल्चर आप किसी भी
इंस्टीट्यूट से ला सकते हैं, दैट इज़ नोन एज द मदर कल्चर। सेकेंड, आप इसका सब कल्चरिंग करेंगे ऑन टू दी स्पेसिफिक स्लांट, यू कैन यूज न्यूट्रिएंट आगार स्लांट और एनी मीडिया स्लांट। सो मदर कल्चर का आप सब कल्चर करेंगे ऑन टू दी स्लांट एंड ब्रॉथ। आफ्टर दैट, ये आप लैब लेवल में भी परफॉर्म कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू विल ट्रांसफर द tubes broth into the small flask, broth in the small flask. Then thirdly, broth in the big flask or in the bottle. So tube से small flask में, small flask से large flask में, ये सब आपको aseptically करना है। broth in the big flask or in bottle, and afterwards your next step will be either यहाँ पर दिस फ्रॉम द लार्ज फ्लास्क यू कैन इमीजिएटली ट्रांसफर दिस मीडिया along with the culture into the fermenter, or you can use the shaker for the limited requirements. अगर आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन चाहिए तो आप फर्मेंटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्मॉल स्केल प्रोडक्शन पायलट लेवल पर करना है तो आप शेकर यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो 2 ऑप्शंस आर देयर, फर्मेंटर और शेकर्स फॉर लिमिटेड रिक्वायरमेंट। आफ्टर दैट यू विल चेक फॉर द ब्रॉथ क्वालिटी। तो यहाँ पर जो मेंशन किया गया है, इट इज़ द ब्रॉथ क्वालिटी चेकिंग। नेक्स्ट स्टेप इज ब्रॉथ इज ब्लेंडेड विथ स्टरलाइज्ड कैरियर। सो ब्रॉथ ये ब्लेंड किया गया है विद द कैरियर, जो हमने प्रीवियस स्टेप्स देखी वही यहाँ पर फ्लोशीट में मेंशन किया गया है। यू कैन यूज़ एनी कैरियर लाइक पीट और लिग्नाइट। सो लिग्नाइट या फिर पीट ये स्प्रेड किया जाता है और उसके ऊपर हमारा कल्चर हम स्प्रेड करते हैं, या फिर कल्चर हम ऐड करते हैं, नॉट स्प्रेड बट वी ऐड आवर कल्चर। सो ब्रॉथ इज ब्लेंडेड विथ स्टरलाइज्ड कैरियर। नेक्स्ट स्टेप इज पैकेजिंग इन पॉलीथीन बैग्स। कल्चर पैक किया जाता है इन द पॉलीथीन बैग्स। आफ्टर दैट 25 डिग्री सेल्सियस curing in control temperature rooms. So 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर में हमारा कल्चर स्टोर किया जाता है। कुछ कंडीशंस कंट्रोल किए जाते हैं, लाइक पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, pH, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा, ये पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज पीट कल्चर क्वालिटी इज बीन चेक्ड। पीट कल्चर क्वालिटी मीन्स कैरियर क्वालिटी चेक की जाती है। एंड देन स्टोरेज इन लो टेम्परेचर रूम्स ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस, एंड देन इट इज़ डिस्पैच और सप्लाई टू फार्मर्स। तो ये सब प्रोसेस हम करते हैं आफ्टर यू कैन से फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइज़र। तो ये था about the bacterial biofertilizers example and mass production of this bacterial biofertilizer. Thank you.